हब रैली में तकरीबन 53 ड्राइवर्स कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आइए एक और गाड़ी हमारे पीछे तैयार है, इनके ड्राइवर से बात करते हैं इस वक्त इनकी क्या फीलिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी हाजी खान मैर। हाँ जी, बताइए कि पहली बार कंटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले कितनी बार कर चुके हैं इसमें? हाँ हमें तो इधर तकरीबन 2-3 साल तो हो गए, इधर पार्टी शिफ्ट करते हैं। माशाल्लाह पहले भी 2 पोजीशन इधर से लिए, दूसरा नंबर भी लिया है, पहला नंबर भी लिया है। माशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह फर्स्ट नंबर लेंगे। मतलब आप पहले ही ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हैं। एक खतरनाक ड्राइवर यहाँ हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त रेस स्टार्ट होने से पहले क्या फीलिंग्स होती, क्या दिमाग में चल रहा होता है आपके? बस यही हमारे जहन में होता है, जो ही हमारे दोस्त है, जो ही हमारे साथ पार्टी शिफ्ट इधर ड्राइवर कर रहे हैं, सब खैरियत से ट्रैक करके आए। आपने ये ट्रैक रैकी कर ली है, किस तरह की लग रही है? सैंडी ट्रैक भी है बीच में। जी जी माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा ट्रैक पे हम भी पूरे इधर पाकिस्तान में जहाँ भी रेसा होते हैं उधर हम जाते हैं। इधर पहाड़ भी है, समुद्र भी है, इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं इधर, और गवर्नमेंट भी बहुत हमसे तावन भी कर रही है। हमें कोई इधर टेंशन भी नहीं है, कोई भी टाइम होता है हम इधर आ जाते हैं। आप ऐसे है कहाँ से बेसिकली? जी हम जिला घोटकी से हैं, सिंध से। ओके, सिंध से भी आए हुए हैं, बलूचिस्तान यहाँ साहिल पर। यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? साहिल के पास यहाँ पे इस रेस का इनेकाद किया। जी जी माशाल्लाह ये इधर बहुत अच्छा माहौल लगा, कोई टेंशन भी नहीं है, हम फ्री इधर एंजॉय कर रहे हैं। जिस टाइम भी हम ट्रैक में जाते हैं तो कोई इधर टेंशन नहीं है। गुड लक। चले जी, एक और ड्राइवर यहाँ पर तैयार है और इस रेस में हिस्सा लेने के लिए, और इनकी भी कोशिश होगी कि सबसे ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाकर इस साल के जो हब रैली है उसके चैंपियन बने। So we have with us His Excellency at this amazing event, Hub Rally, and this is the 11th edition. So thank you so much, sir, for joining us. I hope you are having a great time here. Oh, thank you so much for having me, and the professionalism with which it's been set up. My congratulations to the organizers. And if I'm not wrong, you have a great interest in auto sports, right? And you have participated in Dubai Rally. How do you find it different from this Hub Rally? Well, I didn't participate in the desert rally. It was on the Dubai racetrack. Okay. I started motorsporting when I was about 18 years old. I had to stop it for studying purposes, and then later on I were on and off. But you know, sometimes it does not combine with my profession. So wherever it is possible, I'll be there. Okay, so did you see all the jeeps and the cars that participating in this rally? How do you find the motorsports here? The motorsports here is very inventive by the drivers and the teams. For they are having trouble getting the spare parts organized. So it leaves a lot of space for their creativity, and I appreciate the creativity of the mechanics here. And especially, what do you like to say about the location that they have organized at the seaside? And this is the Balochistan, the beauty of Balochistan. I was yesterday sitting at the seaside and said, well, it reminds me of all the seasides. It's so beautiful, and it's a perfect place. I mean, it's windy, the temperature is nice, people are nice, people are very hospitable. What else would you like? Yeah, definitely. So have you been in such rally that they have organized at the seaside? No, I haven't. Oh, it's a first time. It's That's the first time the seaside rally, and that's a perfect location. And sir, as you said, you have been here in Pakistan for 2 years. So what would you like to tell us about the culture, people and the food here in Pakistan? Having been in a lot of country in the regions, I have to say the hospitality of people here is just breathtaking. I have never ever experienced so much hospitality. Sorry. Having said that, I'm used to spicy food, so there's no surprise in the Pakistani food, and appreciating it very much. Okay, that's wonderful to know. And I would also like to know, how is the experience going in such hot weather? How do you deal with the hot weather? Have you been in Karachi? It is same, it is hot there as well. How do you deal with this? Well, I keep saying you can protect yourself against cold, but not against heat. But it's not that hot. I mean, come on, it's You're windy, enjoying the it's weather. nice, it's perfect. It's breezy actually. It is breezy, it's perfect. So let's enjoy the event.
And I would also like to tell you that this is Geo Super. We are live on Geo Super, Pakistan's Okay. first sports channel. Thank and you for having me. apart from this hub rally, apart from the auto sports, motor sports, how do you see sports talent in Pakistan? How do I see what? Sports talent in Pakistan. When we are talking about sports, sports starts in very early years. Latestly, when you are 7, 8 years old, it is a top-down duty to support sports for children. And it requires places so that they can do their sports. I see a lot of private initiatives which are supporting children's sports, and I very much appreciate that. I've done that myself when I was a kid. I started doing sports until I ended up 6 days a week. No, interesting, interesting. Did you try on this track? Did you drive here? No, I did not drive because I got a slight injury on my shoulder. I did the navigation. Okay, you did I that. did the navigation for Dina. How was and that? It was a bit different. The navigation, you know, you hold yourself on one hand, you have the pad in the other hand, and then you are actually addressing the driver, and then comes the software in between and gives you a different direction. We are getting there. Okay, wonderful. And also, what message would you like to give to the people, to the viewers who are watching Geo Super, and how would you encourage youngsters to take part in such sports? I would encourage youngsters to participate in any sport. Right. Start training early and do team sports where you meet friends, where you actually learn how to work in a team. Sports is important for your health. Sports is important for your mental well-being. Sports is important for your friends who want to see you good-mooded. So that is my encouragement. You know, talking about motor sports, the drivers are, they are not any ordinary drivers. They face challenging moments throughout the track. So you yourself, that you are keen interested in racing. So what safety precautions that you would like to tell the youngster, the enthusiast? What I like very much is the number of women participating in this motorsport, and I can only encourage any woman who is having the means, because it costs money, Right. to have the means to do motorsport. Can only encourage the women, and I can only encourage men to welcome the women. Yeah, thank you. That's wonderful. And how is the experience with Toyota? The experience with Toyota is always good. I mean, Toyota, I'm personally driving Toyota since 30 years. Oh, great. And so far, I think that's the professional off-road company. Oh, wonderful. So yeah, His Excellency is with us, and what else? I think you are watching German on Pakistani Balochistan track, and that's a really dangerous track. He himself is keen interested in racing and this kind of sport. I know there is plenty of talent in Pakistan, especially people are crazy for cricket. I'm sure you must have noticed it. Oh yes, absolutely. I mean, cricket is a regional crazy. Yeah. Cricket is a good sport. I can only encourage everyone to play over the weekend. But I see that a lot when I'm driving around in the car. I see a lot of youngsters playing cricket over the weekend. So, but we are talking about motorsports, and this is. By the way, are there any women cricket teams? Yeah, of course, there There? is. I Yes. haven't seen them. You haven't seen them, you haven't No. interacted with them. I have to look. I will look on YouTube. Yeah, sure. I think you should ask PCB, Pakistan Cricket Board, to have a little bit interactive gathering with them. So they are very talented. They are performing really well. They need to a little bit level up their performance. But Alright. let's come to the Hub Rally again. What suggestion you would like to give to the organizer, or what difference do you find in Hub Rally and in any kind of international rallies? Well, Hub Rally is grinding down, or not Hub Rally, I mean Desert Rally, Yeah. is grinding down your material. So it is, since a lot of material, a lot of tuning material is not being produced in Pakistan, it requires importation.
and importation is very costly. And I'm wondering if throughout the support of sports in general, rallies wouldn't, if it wouldn't be good to support rallies and rally drivers and all the youngsters, encouraging youngsters to free them a bit of those heavy duties. But that is, at the end of the day, a matter of the legislation, of the lawmakers. It is difficult here, and the more I appreciate the way that they are working and the way they are driving, and well done. Did you get the opportunity to interact with the drivers participating in this race? Oh yeah, I mean, first of all, with Dina, whom I'm communicating constantly because I'm sitting aside from her. No, but I've been talking to the other drivers as well, She's an amazing driver. she is an amazing young driver with a huge potential. Yeah. And I think her results today will be excellent. What did you guys talk about? Track. Okay. How many meters to go? Which side of the curve are you taking? Okay. So this is what we were talking about. That's wonderful. And yesterday we were out on the track for 2.5 hours. We were just getting out of the car, looking at the ground, looking at the curves. So well prepared. It's 11th edition of this rally. It is organized at the seaside. The beautiful view you can witness on your TV screens. And some dangerous drivers have participated, and they are trying their best to win this rally and be the champion of this season. And yes, I have with me His Excellency, and he is actually enjoying and keeping his focus on the track, and I am sure he is enjoying the view as well. Oh yeah, absolutely. I mean, it's hard to choose between the screen and the nature. Yeah, definitely. So, of course, we were talking about the difference between, the international level rally and this kind of event that organized at the seaside. What else have you observed here? But as I said, the Hub Rally is very professionally organized, and I can only invite everybody to come here and to look, and at least on the next one. It is the safety. There's quite a focus on the safety. We have a lot of medical services here. We have the fire brigade here. We have the police here. I think it is the environment is very professional. And sir, I was talking with one of the drivers down there on the track, and I asked him, did you experience any accident during your race? He said, yes, there was an accident, I experienced such bad experience. Then I said, and you continued this passion. What kind of passion is this? Don't you have any fear? So what is your emotion? Like, it's fearless sport, I know. Every sport Fear is a natural attitude. Fear prevents us from doing things we shouldn't do. Right. But the magic is to have fear and to overcome it, to live with it. Right. I did throughout my life parachuting, and my God, for the first time I was about to jump, I was like, please no. Okay. But that fear had never gone, but I've learned to live with it, and that is something I would like to pass over to the youngsters as well. If you feel fear, take a deep breath, realize it, and live with it. Yeah, definitely. I think that's a really nice suggestion for the sportsmen and sportswomen. Exactly. Don't be afraid. Yeah. And even actually in life as well, in general life as well. Oh, absolutely. In general life as well. Okay. So since the drivers, they are athletes, they are sportsmen, like other sportsmen. Or sportswomen. Sportswomen, yes, definitely. How do they keep, their health? How do they take care of their health? Or there is nothing regarding health, like they don't need to take care about their fitness? Oh, absolutely. If you're not fit, you won't succeed. I know that not all the drivers are in
sports and gymnastics and gyms. However, it is beside what we see or what people see are the races, but they do not see how much the drivers are actually doing in their free time, going into the gym, going running, going swimming every morning. There's more to it. All right, thank you so much for joining us, sir, and I hope you enjoy the rest of the race. So now we'll be joined by Atikur Rahman, and he'll continue the commentary. Thank you, Hina, or thank you. Well, thank you And for having me. yes, thank you for good information for your water bottle. Thank you. बहुत शुक्रिया हिना दीदार। और आप देख रहे होंगे कि लगभग कोई 15-16 गाड़ियां जो है वो ट्रैक पर अपना सफ़र मुकम्मल करते हुए, और आप देख रहे होंगे इस वक्त बहुत ही, और एक और गाड़ी तैयार स्टार्टिंग लाइन के ऊपर अपने इशारे के इंतजार में हमें कॉम्बैक में ज्वाइन किया है इस हब रैली का मेला सजाने वाले, और इस हब रैली के चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी, आपको हम वेलकम करते हैं सर। बहुत शुक्रिया, आपने अभी अपने ट्रैक पर जो है गाड़ी भी दौड़ाई, क्या कहना चाहेंगे तजर्बा थोड़ा सा माइक। थैंक यू वेरी मच जी। एक तो जियो का बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह हम ये 11वां एडिशन कर रहे हैं, 11वीं हब रैली है और 24 में हम बैठे हैं, लेकिन दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि ये लाइव रैली जा रही है। और मैं तो कहता हूँ कि जो चलाने वाले हैं उनके इंजॉयमेंट के साथ जो देखने वाले हैं उनका भी इंजॉयमेंट हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है, ये हमने ट्रैक जो है इस दफ़ा 51 किलोमीटर का बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक पे मैंने ख़ुद भी रैकी की और मैं चला के भी आ रहा हूँ। इस जैसा ट्रैक मतलब मैं गारंटेड कहता हूँ आपको, गारंटेड कहता हूँ कि हम किसी भी वर्ल्ड क्लास ट्रैक से कॉम्पिटिट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जितना खूबसूरत है, और अंदर ट्विस्ट हैं, अंदर जो है वो डस्ट भी है, मड भी है, हिली एरिया भी है, टर्न भी हैं, काफ़ी सारे पर्ट्स हैं इसके अंदर और बहुत ही इंजॉयमेंट है। और आप देख भी रहे होंगे, थोड़ी बात आपकी काटूंगा, फिनिशिंग लाइन के ऊपर भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से गाड़ी जो है वो अपनी फिनिशिंग लाइन कंप्लीट कर रही है। खासी गाड़ियां जो है जिन्होंने आगाज़ किया था और वो अपनी फिनिशिंग लाइन पर अब अबूर करते हुए, एक शानदार नज़ारा। शुजात शेरवानी साहब, बलूचिस्तान की खूबसूरती जो है वो हमें यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मेरी पहले भी अतीक भाई आपसे बात हुई कि ये बलूचिस्तान जो है ना, ये बहुत खूबसूरत एरिया है, और सबसे बड़ी बात ये कराची से कोई 45 मिनट की ड्राइव पे है। लोगों को पता नहीं है ये गडानी का बीच, ये किसी भी इंटरनेशनल बीच से आप इसको कॉम्पीट कर सकते हैं। आपको यहाँ ब्लू सी नज़र आएगा, आप यहाँ ऊपर से बैठ के नज़ारा करेंगे, सामने नज़र आ रहा है हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट अपोजिट ब्लू सी। तो ये ब्लू सी हमें कराची में कहाँ नज़र आता है? ये सिर्फ बलूचिस्तान पे ही है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री। और यहाँ से कोई 3 किलोमीटर के ऊपर गडानी का शिप ब्रेकिंग यार्ड है, और यहाँ के नज़ारे देखें आप, गाड़ी देखें माशाल्लाह। हाँ, ये जबरदस्त। ये अभी नए रेसर आए, स्टिलैक्स कंपनीज के ऑनर हैं, जाहिद अली साहब और शहजाद साहब, दोनों भाई हैं, और बड़ा शौक़ है इनको। इनके वालिद भी आज से कोई मरहूम 35-40 साल पहले वो रेस किया करते थे। अब इन बच्चों को भी शौक़ हुआ है और मैंने इन्हें कहा कि आप आइए ट्रैक पे आइए। शेरवानी साहब देख रहे किस तरीके से मोड़ पे इन्होंने स्पीड भी अपनी कम नहीं होने दी और उसको बरकरार रखा। बहुत अच्छी ड्रिफ्टिंग है, अच्छी ड्रिफ्टिंग है। और नया स्टॉक कैटेगरी में इतनी अच्छी गाड़ी चलाना, मैं समझता हूँ कि आगे इनको इंशाल्लाह ताला ये आगे बिल्कुल जाएंगे, इस कैटेगरी से आगे जाएंगे और स्टॉक से किसी वक्त ये प्रीपेड में आएंगे। अब देखें सामने गाड़ी चल रही है और समंदर नज़र आ रहा है आपको। मैं कहता हूँ इससे अच्छा लुक क्या नज़र आएगा आप लोगों को, इससे अच्छा नज़ारा क्या नज़र आएगा। और हमारा अभी आपके साथ जर्मन वाइस काउंसलर बैठे हुए थे, और वो उनके साथ वो इत्तेफाक है, उन्होंने कहा मैं गाड़ी चलाऊँगा, और मैंने उनको अपनी गाड़ी दी है। मैंने उनसे कहा आपके पास गाड़ी नहीं है, अब आप गाड़ी आप ले। वो हैरान था कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अपनी गाड़ियां दे देते हैं, क्योंकि ये तो कहीं पर भी नहीं है। वो तो कहता है हमारे यहाँ चाय का नहीं पूछते, आप हमारी पूरी गाड़ी दे रहे हैं। मैंने, आप हमारे मेहमान हैं जी, आप अपने साथ गाड़ी चलाएं। ये शुजात साहब आपकी मोहब्बत है। आप वैसे ये बात है मैं इनके मुंह पे नहीं कह रहा,
लेकिन कोई भी इनके पास आता है, दरवाज़ा खटकाता है तो बिल्कुल शुजा सरवानी साहब अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं। गाड़ी तो एक इनके लिए एक छोटी सी चीज़ होगी, असल है दिल और मोहब्बत जो है वो पेश कर देना। तो आप देख रहे हैं कि खूबसूरत नज़ारा, किस तरह की तरीके से ड्रिफ्टिंग की यहाँ पर, बहुत खूबसूरत स्पीड भी अपनी बरकरार रखी हुई है। और आम जियो सुपर जो है वो हर टैलेंट को शुजा सरवानी साहब दिखाता है। अब हब रैली की भी एक हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि पहली दफ़ा किसी रैली की, और ये फिनिशिंग लाइन पे आप देख रहे होंगे एक और गाड़ी बहुत ही शानदार अंदाज से इन्होंने ड्रिफ्टिंग की है और फिनिशिंग लाइन की जानिब अपना सफ़र मुकम्मल करते हुए आपको ये नज़र आ रहा होगा। इन्होंने अपनी टाइमिंग मुकम्मल की और ये हब रैली जो है कामयाबी के साथ इस वक्त रवा दवा है। शुजा शेरवानी साहब, ये गाड़ी आपने देखी ना, एफजे क्रूजर है ये, और एफजे क्रूजर बड़ी पावरफुल गाड़ी है और इसकी हैंडलिंग जो है वो जो लोग एफजे क्रूजर चलाते हैं ये उनको ही पता है, इसकी हैंडलिंग बहुत खूबसूरत हैंडलिंग है। नादिर मक्सी साहब भी एफजे क्रूजर चलाते हैं कभी कभी, आज तो वो टकुमा चला रहे हैं अपनी, और बहुत ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि नज़ारा है। आप सब देखें आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह कोई 60 से ज़्यादा एंट्रीज़ हैं अतीक भाई, और वुमेंस कैटेगरी कंप्लीट हुई है, वेटरन्स कंप्लीट हुई है, उसमें एक आध रेसर रहते हैं। अभी मेरे ख्याल में ये ए स्टॉक चल रहा है अभी इस वक्त, ए स्टॉक जो है वो रवां दवा है। और सामने एक और गाड़ी आपके नज़र आ रही है, अब स्क्रीन पे आए इसका नाम तो पता लगे, और ये स्टॉक की गाड़ी है ये भी, आप देखें सामने। अच्छा शुजा साहब, बिल्कुल ये स्टार्टिंग लाइन पर एक और गाड़ी फर्राटे भरने के लिए और धूल उड़ाने के लिए यहाँ पर तैयार अपना इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इशारा मिलते ही ये गाड़ी भी ट्रैक पर आपको एक्शन में नजर आएगी। शेरवानी साहब, दरअसल हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये स्टॉक कैटेगरी और प्रीपेड कैटेगरी में क्या फ़र्क होता है? स्टॉक ए क्या होता है? पहले तो हम स्टॉक कैटेगरी को डिफाइन जरा कर देते हैं। स्टॉक ए में क्या होता है, बी में क्या होता है, सी में क्या होता है? देखें, स्टॉक कैटेगरी बेसिकली स्टॉक जो वो गाड़ी ओरिजिनल गाड़ी है ना वो ही स्टॉक है। अच्छा। उसके अंदर कोई इंजन की रद्दोबदल नहीं होती, उसके अंदर कोई और मॉडिफिकेशन नहीं होती। सिर्फ अलाउ जो होते हैं वो शॉक ऑब्जर्वर अलाउ होते हैं, और वो भी शॉक ऑब्जर्वर अलाउ होने के साथ साथ कुछ आप बम्पर चेंज करते हैं, वो भी रैली क्रॉस में। अगर वो बड़ी रैली है तो वहाँ बम्पर की भी चेंजिंग की आपको जो है इजाज़त नहीं है। तो स्टॉक में जैसे गाड़ी बनी है उसी तरीके से गाड़ी होगी, और उसमें 4 कैटेगरीज होती हैं, मतलब 1000 सीसी डी स्टॉक होती है, उससे ऊपर सी स्टॉक होती है जो तकरीबन 2 लीटर्स तक जाती है। फिर मैं आपकी बात थोड़ी काटूंगा। ये आतिफ जवाद और उनके नेविगेटर अनस कुरैशी, इनकी गाड़ी का नंबर 603 ये ट्रैक पर अभी निकली है और बहुत अच्छी ड्रिफ्टिंग करते हुए। जी शुजा शर्मी साहब, आपकी बात मैंने काटी थी। नहीं कोई बात नहीं, तो मैं स्टॉक की बात कर रहा था, लेकिन मेरी बातों के दौरान गाड़ी इतनी अच्छी चल रही है कि वो बातें मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा अहमियत इस गाड़ी की जो है वो है। अच्छा, मैं अतीक भाई वो उस बात को कंप्लीट करूँगा। यहाँ मैं एक बात बताऊँ आपको, ये जिस तरह हमें गाड़ी नज़र आ रही है जिस स्पीड से, इस वक्त इस गाड़ी की स्पीड 120-125 किलोमीटर की रफ्तार होगी जो इस वक्त नज़र आ रही है। तो इस ट्रैक के ऊपर 120-125 किलोमीटर कच्चे में गाड़ी चलाना, एक हैंडलिंग बहुत बड़ा इसके अंदर कंट्रोल चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि जो स्टॉक डी होती है वो 1000 से ऊपर की, जी, और बी जो है वो 1500 से ऊपर की, और उसके बाद सी जो है वो अबव 2000 सीसी, 2000 to 3000 सीसी तक, और फिर उसके बाद 3000 के बाद वो ए स्टॉक कहलाती है। वो ऑनवर्ड जहां तक भी हो वो ए स्टॉक में गाड़ी आएगी 3 लीटर के बाद। और अगर हम प्रीपेड की बात करें, अब इसी तरह सेम प्रीपेड में भी है, बस प्रीपेड में सीसी में कोई रद्दोबदल नहीं है, लेकिन उसके अंदर गाड़ी को आपको इजाज़त होती है कि आप गाड़ी का इंजन चेंज करें, गाड़ी के अंदर आप चिप्स लगाएं, गाड़ी की ट्विंग करें, गाड़ी के अंदर शॉकर आप कोई से भी डाल सकते हैं, टायर कोई से भी बदल सकते हैं, मतलब आप गाड़ी में जो कुछ भी कर सकते हैं वो आपको इजाज़त है कंप्लीटली। और ये देखें, ये बलूचिस्तान के यहाँ के रहने वाले, इनको ऐसे मौके कम मिलते हैं ये हैवी गाड़ियाँ दौड़ती हुई, और यहाँ जिस तरह शुजा शेरवानी साहब ने मेला लगाया, ये अपने घरों से निकल के, मैंने को देखा कल रैकी हो रही थी, कल भी यहाँ पे मौजूद थे, और आज भी सुबह से जो है वो यहाँ देख रहे हैं ये हब रैली के नज़ारे और हब रैली की गाड़ियाँ दौड़ती हुई। तो बहुत ही ज़बरदस्त जंगल में आपने मंगल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बस ये अल्लाह का शुक्र है। हमारी इस दफ़ा हमने प्लानिंग भी ये की थी। एक तो हम लेट हुए, आपको पता है बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर इलेक्शन का मामला था, और हम उसका फ़ायदा हमें एक ये हुआ कि गर्मी तो ज़रूर है
लेकिन हम अपना पूरा अरीना जो है वो इस आयरलैंड पे ले आए। और यहाँ आप इस वक्त हम बैठे हैं, कोई 1 बज रहा है, तकरीबन 12:30 1 बज रहा है, लेकिन गर्मी का एहसास नहीं है। सामने से शानदार समंदर से हवा चल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त, हमें कोई गर्मी की फीलिंग नहीं हो रही। बिल्कुल आपने सही कहा, गर्मी का मौसम है और एक और गाड़ी स्टार्टिंग लाइन पर अपने इशारे के इंतज़ार में लाइटें ऑन की हुई और सिर्फ इशारा मिलते ही ये गाड़ी भी अपने ट्रैक पर जो है रवादावा होगी। लगभग कोई 20-22 गाड़ियां जो हैं वो ट्रैक पर जो है आई हैं। कुछ ने अपनी गाड़ी जो है वो अपना रेस मुकम्मल कर रही है। वुमेंस कैटेगरी मुकम्मल हो गई है, वेटरन्स कैटेगरी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं और स्टार्टिंग लाइन पर आप देख रहे होंगे एक और गाड़ी तैयार है इस ट्रैक पर अपनी गाड़ी दौड़ाने के लिए। और शुजात शरवानी साहब, कितनी मेहनत होती है, बज़ाहिर तो एक लग रहा होता है लेकिन महीनों की मेहनत होती है इसके पीछे जो आप लोग लगे हुए होते हैं। और सबसे अच्छी बात हमने देखी, आप चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और मैं जिस दिन भी यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए, इंतजाम देखने के लिए, रैकी करने के लिए या देखने के लिए, आपको मैंने हर वक्त यहाँ पाया। क्या घर नहीं जा रहे आजकल? नहीं, मज़े की बात यह है कि आपको जैसे पता है, या हब में भी मैंने एक टोयोटा की डीलरशिप खोली और वहाँ पूरा अरेंजमेंट मैंने अपने रेसर्स के लिए अपने लिए किया, लेकिन वो रात को कोई 11:30-12 बज गए थे, तो बस मैंने कहा घर जाते हैं और घर से ही वापस आते हैं। और तैयारी जो आपने अतीक भाई बताई ना, तो ये तैयारी पूरे साल चलती है। मेरे बिज़नेस में हमारे 8 घंटे में से 1 घंटा जो है वो हब रैली का है रोज़ाना। तो हब रैली को रोज़ाना 1 घंटा दिया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्या चीज़ है, क्या करना है, हमें आगे कैसे करना है, उसको कितना खूबसूरत इवेंट बनाना है, इसका क्या प्लान करना है। और इस दफ़ा प्लानिंग में हमारा जो था, ये शुरू दिन से था कि यार ये टीवी की कवरेज तो बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन इसको लाइव जाया जाए। क्रिकेट मैच हम देखते हैं, हमारे लोग कहते हैं ये सारा दिन ज़बरदस्त क्रिकेट मैच है, तो मैंने कहा इस दफ़ा कोशिश करते हैं, बस आप लोगों के ताउन से और मीडिया के ताउन से इसको हम लाइव दिखाने में कामयाब हो गए। और अब सिलसिला इंशाल्लाह ताला, आज मैं समझता हूँ कि ये 1 टीवी 2 टीवी हैं, अगले साल अल्लाह ने चाहा तो 4-5 टीवी इसमें हमारे साथ लाइव होंगे। बिल्कुल शुजात साहब, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है और जियो तो चाहता है कि वो हर स्पोर्ट्स को सामने लेकर आए। हमने नेशनल गेम्स कोयटा में हुए, वहाँ चाहे कबड्डी का इवेंट हो, चाहे कराटे का हो, चाहे रस्सा कशी का मुकाबला हो, हम जियो सुपर ने पाकिस्तान के तमाम टैलेंट को जो है अपनी स्क्रीन पर दिखाया। और ये देख रहे होंगे स्पीड फर्राटे भरती हुई ये गाड़ी आपको स्टार्टिंग लाइन के ऊपर, इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी किस तरीके से। तो शुजात शरवानी साहब, किस तरह देख रहे हैं बलूचिस्तान स्पोर्ट या बलूचिस्तान गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है या कितना करना चाहिए, या अगर वो करे तो अभी ये 51 किलोमीटर की है तो और कितनी बड़ी हो सकती है अगर आपको थोड़ा सा और सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, इसमें तो मैं समझता हूँ जो हमारा जो इवेंट है या हमारा जो ये रैली क्रॉस है, ये 51 किलोमीटर भी ज़्यादा है। रैली क्रॉस आमतौर पे 20 से 25 किलोमीटर होती है, लेकिन अगर इसको रैली की शक्ल दी जाएगी तो फिर ये 50 से स्टार्ट होकर 200-250 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन हमारे पास इस एरिया में इतना वो टाइम नहीं है। देखिए, ये रैली देखा, अभी गाड़ी है रवाना हो गई, एक और गाड़ी रवाना हुई है यहाँ पे। मोहम्मदुल्ला और हमायूं इनके नेविगेटर्स, और ये बहुत ही शानदार आगाज लिया इन्होंने, ड्रिफ्टिंग बहुत अच्छी की और कहीं भी अपनी स्पीड को टूटने नहीं दिया। ये देखिए, बहुत ही शानदार ड्रिफ्टिंग, और स्टार्ट के अंदर ही शुजात साहब ये टर्न्स मिल जाते हैं और आप ये देखें किस तरह धूल उड़ रहा है, अपनी स्पीड को कम नहीं होने दे रहे। ये वाइट और बड़े अच्छे अच्छे कलर के साथ ये भी हम देखते हैं, ये भी ड्राइवर्स का एक बहुत ज़बरदस्त शौक होता है। जी, ये ब्रांडिंग करवाई जाती है गाड़ी में, बहुत ज़बरदस्त दीप भाई, और ये गाड़ी बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छी ड्राइव कर रहे हैं माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ। और मैं समझता हूँ पोडियम को छुएंगे ये, जिस तरह इन्होंने इसका आगाज़ किया है, बहुत ज़बरदस्त। तो बात वही हो रही थी कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट की आप बात कर रहे थे, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आज आपको पता है कि गवर्नर बलूचिस्तान भी आ रहे हैं और गवर्नर सिंध भी आ रहे हैं। तो किसी ने पूछा आपने 2 गवर्नर बनाए, मैंने कहा कि इस इवेंट का नाम हब रैली है, तो दोनों का हब है ये, तो दोनों को हब पे हमने मिलाया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर आपस में बैठेंगे और आपके ताउन से आज हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इवेंट को वो अपना इवेंट बनाएं और इसको ऑन करें और इसको बलूचिस्तान की जो स्पोर्ट्स कैलेंडर है उसमें शामिल करें। लेकिन एक चीज़ मैं और देखता हूँ शुजात शरवानी साहब,
हर साल बाकायदगी से 2-4 रेसें हैं जो बाकायदगी से होती हैं हर साल, जिसमें एक हब रैली मैं देखता हूँ टॉप के ऊपर होती है और वो अपने हर कैलेंडर पे हर साल जो है वो नजर आती कितना है। खूबसूरत नज़ारा है अतीक भाई, आप सामने देखें ये जी दिल ही चाहता है कि बस यहाँ जो है पहुंचा जाए देखते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा था, लेकिन जैसे थर रैली हुई हो गई, उसके बाद अब 3-4 साल का गैप आ जाएगा। आपकी होती है, चोलिस्तान की हो गई, झलमक्सी आप कह सकते हैं, ये 3-4 रेसेस हैं जो हर साल बाकायदगी से जो है वो होती हैं। तो कितना मुश्किल होता है कि हर साल इस इवेंट को सजाना, क्योंकि हमने देखा थर हो गई, अब वो 3-4 साल का गैप हो गया, अब पता ही नहीं है कि 3-4 साल बाद होगी या नहीं होगी। हालांकि वो थर सिंध की धरती पर होती है, सिंध गवर्नमेंट का, सिंध स्पोर्ट का एक हैवी बजट होता है, उनको करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये कर सकते हैं। देखिए शौक की बात है, ये पैशन की बात है, या अपने इंटरेस्ट की बात है। जिस तरह मैं इसको हब रैली को आप देखते हैं, माशाल्लाह ये 11वां साल है और कंटिन्यूटी से हो रहा है। और मैंने जैसे आपको कहा, पूरे साल हम इसकी तैयारी करते हैं, पूरे साल इसकी प्लानिंग करते हैं। इसमें देखिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके स्पॉन्सर्स का है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे तो करती है, लेकिन स्पॉन्सर जब तक नहीं आएंगे इस रेस को कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। और इसमें मैं अपने साथ एक बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ टोयोटा कंपनी, टोयोटा इंडस मोटर कंपनी, जो कि हमें जो है स्पॉन्सर करती है और हमारे साथ खड़ी है। और उन्होंने इस साल GR लॉन्च की है, तो उस GR की वजह से जो टोयोटा GR एक वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स GR, जो है स्पोर्ट्स वर्जन है, तो गाजू रेसिंग वर्जन है। तो उसका उन्होंने एक हर गाड़ी में एक GR लॉन्च की है। तो हमने इंडस ने इस दफ़ा हमें सपोर्ट किया GR के थ्रू, और बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और उनका हमेशा हमारे साथ एक वादा है कि इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज हमारे CEO भी आ रहे हैं, जमाली साहब। हम जब वो आ जाएंगे, बड़े शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमें ओके किया, क्योंकि उनकी आज फ़्लाइट भी थी इस्लामाबाद, तो हम उनको आपके साथ मिलाएंगे और आप उनसे भी इस रैली के बारे में ज़रूर मालूमात, बड़े शौकीन हैं वो खुद भी गाड़ी के। तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमारे साथ जो है वो स्पॉन्सर्स आए। इस साल हमारे साथ माशाल्लाह कुछ नए स्पॉन्सर्स आए, उसकी सपोर्ट की वजह से हमने आपने देखा ये पूरा मेला बनाया, पूरा मेले को रौनक बख्शी है। तो ये उसी का एक कंट्रीब्यूशन है। हाँ बिल्कुल, आपने से क्या। और यूं एक और गाड़ी अपने ट्रैक पर रवा दवा स्टार्ट लिया स्टार्टिंग लाइन से, और ड्रिफ्टिंग करते हुए अपने ट्रैक के ऊपर, बहुत ही शानदार। इस गाड़ी का नंबर 011, और हमें लिस्ट में देखना पड़ेगा, और ये हैं ब्रेक मजारी। और बिल्कुल, तो आतिक भाई मैं आपसे एक थोड़ा सा टाइम लूँगा, कुछ गेस्ट आए, इंशाल्लाह फिर आपको ज्वाइन करूँगा इंशाल्लाह ताला। आतिक भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी अच्छी मालूमात फराम की। और आप देख रहे होंगे ये ट्रैक के ऊपर मजारी साहब की गाड़ी रवा दवा, बहुत ही शानदार ड्रिफ्टिंग की यहाँ पर, और स्पीड को अपने बरकरार रखा, टूटने नहीं दिया अपनी स्पीड को। और अब ये आ गए अपनी साहिली पट्टी की जानिब। साहिली पट्टी भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर गाड़ी का दौड़ाना और भगाना एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो यूं एक और गाड़ी अपने ट्रैक पर रवा दवा साहिली पट्टी से वो इस वक्त यहाँ से गुजर रही है। लगभग कोई 18 से 20 से 22 गाड़ियाँ जो हैं वो स्टार्टिंग लाइन से अपने ट्रैक पर आ चुकी हैं।